السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائن۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیا انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ایم کے ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام، صرف ایک نہیں 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز، ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل، 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت، 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس، اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2، بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2، where life comes alive۔ ریاست تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں بارش سے بڑے پیمانے پر تباہ کاریاں، 10 افراد ہلاک، کاماریڈی دریا میں تبدیل، سڑکیں بہہ گئیں، پانی میں پھنسے کئی افراد کو نکال لیا گیا، ذخائر آب سے پانی کا اخراج جاری۔ میڈیگڈا انارام سندیلا بیرج ایلمپلی پروجیکٹ کے مقابل ناقص، کالیشورم پروجیکٹ رپورٹ پر اسمبلی میں مباحث کے بعد ہی حکومت ٹھوس قدم اٹھائے گی۔ ریونت ریڈی کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی سروے۔ شہر جل رہا تھا، نیرو چکرورتی ریونت ریڈی بانسری بجا رہے ہیں، KTR کی حکومت پر تنقید۔ عوام کی پریشانیوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، ہریش راؤ کا رد عمل، BRS لیڈرز کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ اور چادر گھاٹ حدود کے شنکر نگر میں موسیٰ ندی میں ایک شخص غرقاب، SDRF اور پولیس کی ٹیمیں تلاش میں مصروف۔
और अब पेश हैं खबरें तफसील से। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में जारी बारिश से हुए नुकसानात में 10 अफराद की मौत हुई है। कामारेड्डी दरिया में तब्दील हो गया है। बारिश से मुतासिरा अजला में सड़कें बह गई हैं। पुलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। आबी ज़खायर और प्रोजेक्ट्स लबरेज हो चुके हैं। अवामी ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश में फंसे कई अफराद को बचा लिया गया है। बचाव और राहतकारी के काम मुसलसल जारी हैं। पेश है तफसीली रिपोर्ट। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान बारिश ने कामारेड्डी में गैरमामूली तबाही मचाई है। गुज़िश्ता रोज 14 घंटों तक 500 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी और जुमेरात की सुबह 3 घंटों के दौरान कामारेड्डी में 150 मिलीमीटर बारिश हुई है। कामारेड्डी में तालाब, नदियां, कुंटे और प्रोजेक्ट्स लबरेज हो चुके हैं। बारिश का सिलसिला मुसलसल जारी है। अवामी जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। अभी भी कई लोग पानी से घिरे हुए हैं और उन्हें निकालने के लिए इक़दामात जारी हैं। मुकामी अवाम का कहना था कि वो घर से कदम भी नहीं निकाल सकते। इंतजामिया को मजीद बारिश की पेशकियासी के पेश नजर चौकस देखा गया है। दूसरी तरफ कामारेड्डी रोड पर वाक़े बीबीपेट के पास पुल पानी में बह गया है। बीबीपेट झील खतरे के निशान तक पहुंच गई है और पानी आसपास के नशेबी इलाकों में फैल चुका है। कई इलाके ज़ेर-ए-आब देखे गए। सड़कों को गैरमामूली नुकसान हुआ है। कामारेड्डी में कई सड़कें बह गई हैं और सड़कों पर शिगाफ भी देखे गए हैं। सड़कों पर पानी मुसलसल बहता हुआ देखा जा रहा है। सड़कें नाकाबिले इस्तेमाल हो चुकी हैं। सिरसिल्ला जिले की निर्मला मानेरू सैलाब में फंसे हुए 5 अफराद को बचा लिया गया है। फौज के हेलीकॉप्टर की मदद से नरसिमलू, स्वामी, एल्लैया, स्वामी और नरसैया को बचा लिया गया। ये चरवाहे बताए गए हैं जो गुज़िश्ता कई घंटों से पानी में फंसे हुए थे। कामारेड्डी से गुजरने वाली कौमी शाहरा को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। हैदराबाद आने वाली ट्रैफिक का रुख भी मोड़ दिया गया है। मुकामी पुलिस ने बताया कि कामारेड्डी, डिशपल्ली, आरमूर की रूट पर सड़कें मुतासिर हुई हैं। हैदराबाद से बराह नागपुर हाईवे जाने वाली गाड़ियों का रुख मेरचल चेकपोस्ट से मोड़ दिया गया है। करीमनगर से सिद्दीपेट जाने वाली ट्रैफिक का रुख भी मोड़ दिया गया है। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि जरूरत के मुताबिक ही सफर करें। इस दौरान कामारेड्डी की कौमी शाहरा NH-44 पर गैरमामूली ट्रैफिक देखी गई है। तकरीबन 20 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम बताई गई है। सड़कों पर पानी के बहने के पेश नजर ये सूरत हाल हुई है। मेदक जिले में भी कई सड़कें तबाह हो गई हैं। गाजीरेड्डीपल्ली में पुल पानी में बह गया है। सैलाब के पानी से पुल के पिलर्स भी बह चुके हैं। पुल के बह जाने से मेदक और कोत्तापल्ली के दरमियान ट्रैफिक को रोक दिया गया है। दोनों इलाकों में देहातों के अवाम को ट्रैफिक के रोके जाने से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सिद्दीपेट भी बारिश से शदीद मुतासिर हुआ है। गुज़िश्ता 2 दिनों की बारिश के दौरान सिद्दीपेट के कई देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। श्रीनगर कॉलोनी, श्रीनिवास नगर पानी में डूबा हुआ देखा गया। मकानात में पानी दाखिल हो चुका है। सड़कों पर पानी का मुसलसल तेज बहाव जारी है। अवाम की मदद के लिए इंतजामिया की तरफ से इक़दामात जारी हैं। उधर सिद्दीपेट के होतारेड्डीपेट में 3 किसान फंसे हुए हैं और उन्हें निकालने के लिए इक़दामात जारी हैं। बताया जाता है कि गुज़िश्ता रात से किसान पानी में फंसे हुए हैं। काम के लिए गए किसान पानी में महसूर हो गए। मुकामी अवाम और इंतजामिया की तरफ से किसानों को निकालने के लिए इक़दामात जारी हैं। तेलंगाना निर्मल जिले के भैंसा में भी जुमेरात को शदीद बारिश हुई है। बारिश की वजह से कई मुकामात पर पानी जमा देखा गया। नशेबी इलाकों में पानी का तेज बहाव नजर आया। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। भैंसा के सर्कल इंस्पेक्टर गोपीनाथ और उनकी टीम ने बारिश से महसूर अवाम की मुंतकली के लिए इक़दामात किए हैं।
एनडीआरएफ की टीम ने पुलिस की मदद से निर्मल जिले में फंसे हुए शंकर नायक को बचा लिया है। गुज़िश्ता कई घंटों से शंकर नायक पानी में फंसा हुआ था और उसके अफराद खानदान भी परेशान थे। कामारेड्डी के राजमपेट में दीवार के मुनहदम होने से बस्ती दवाखाने के मुकामी डॉक्टर विनय फौत हो गए हैं। गांव में डॉक्टर विनय की मौत से गम का माहौल देखा गया। जब डॉक्टर की लाश मुंतकिल की जा रही थी, कई मुकामात पर दरख्त गिरे हुए पाए गए और मुश्किलात भी पेश आईं। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में जारी बारिश से आबी प्रोजेक्ट्स और कई ज़खारे आब लबरेज हो गए हैं। 103 साल पुराना प्रोजेक्ट पोचारम भी लबरेज हो गया है। प्रोजेक्ट से 70,000 क्यूसिक पानी को छोड़ा जा रहा है। निजामाबाद में भी कई इलाके सैलाब की सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। नदियां तालाब लबरेज हो गए हैं। गौलकाट का इलाका पूरी तरह से ज़ेर-ए-आब देखा गया। 3 घंटों के दौरान आज निजामाबाद में 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। करीमनगर में सुबह से शदीद बारिश हुई है। 3 घंटों के दौरान 75 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आम जिंदगी मफलूज देखी गई। मानेरू डैम और गोदावरी में पानी का जबरदस्त बहाव देखा गया। निर्मल की जेनार कॉलोनी शदीद बारिश के बाद पानी में डूबी हुई नजर आई। सैलाब के पानी में फंसे अवाम को गैर मामूली मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। निजाम सागर से भारी मकदार में पानी मांजरा नदी को छोड़ा गया है। पूरे इलाके में चौकसी बरती जा रही है। जुमेरात को भी आदिलाबाद, करीमनगर, सिरसिल्ला, मेदक, मुलुगु, पेदापल्ली, आसिफाबाद में शदीद बारिश की पेशकयासी की गई थी। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता रात से लेकर सुबह तक मोतदिल बारिश का सिलसिला जारी था। 9 बजे के बाद सूरज की किरणें देखी गई। ताम हैदराबाद में शाम और रात में बारिश की पेशकयासी की गई है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सैलाब मुतासरा इलाकों का हवाई सर्वे किया। उनके हमराह वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी और पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ मौजूद थे। वज़ीर आला ने हवाई सर्वे के जरिए पेद्दापल्ली, कामारेड्डी, मेदक के मुतासरा इलाके और इल्लमपल्ली प्रोजेक्ट का भी दौरा किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इल्लमपल्ली प्रोजेक्ट को देखकर यह वाज़ेह हो गया है कि तकनीक और माहिरीन के मशवरे पर तामीर किए गए प्रोजेक्ट को कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इल्लमपल्ली प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर तामीर किया गया है, इसलिए इसको कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि मेडारम बैरेज को नुकसान पहुंचा है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स के दरमियान जो फ़र्क है वो वाज़ेह नज़र आ रहा है। माहिरीन के कहने पर मेडिगुड्डा बैरेज किसी काम का नहीं है। मेडिगुड्डा बैरेज की मरम्मत भी नहीं हो सकती। जिस पर मीडिया की जानिब से पूछा गया कि अनाराम सुंदेला बैरेज में पानी का ज़ख़ीरा किया जा सकता है। इसके जवाब में रेवंत रेड्डी ने कहा कि मेडिगड्डा, अनारम और सुंदेला बैरेज एक ही टेक्नोलॉजी के तहत तामीर किए गए हैं। मेडिगड्डा से पानी को लिफ्ट करके अनारम और सुंदेला में डाला गया तो इस पानी को फिर से लिफ्ट कर इल्लमपल्ली में डालना होगा। वज़ीर आला ने कहा कि जो बैरेजेस की तामीर की है इसके डिज़ाइन में नक़्स है। उन्होंने अगर कुछ नागहानी सूरत हाल पैदा हो गई तो देहात बह जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि असेंबली में कालेश्वरम रिपोर्ट पर बहस के बाद ही हुकूमत कोई ठोस फैसला करेगी। सैलाब से मुतालिक सवाल पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि ओहदेदारों के जरिए तमाम तफसीलात हासिल की गई हैं। इससे मुतालिक चंद हिदायतें भी जारी की गई हैं। సాంకేతిక నైపుణ్యంతో కట్టారు. మేడిగడ్డ అయినా అన్నారం అయినా సుందిల్ అయినా వాళ్ళు ఏంటంటే అతి తెలివితేటలతోని మామ అల్లుడు ఏమనుకుంటారంటే ఒక ఆయన స్వాతి ముత్యం అనుకుంటాడు, ఇంకొక ఆయన ఆనిముత్యం అనుకుంటాడు. మేడిగడ్డ నుంచి ఎత్తితే అన్నారంలో పోయాలి, అన్నారంలో ఎత్తితే సుందిలలో పోయాలి, అక్కడ నుంచి ఎత్తితే శ్రీపాద ఇల్లంపల్లికి పోయాలి. ఒకే రకమైన సాంకేతిక నైపుణ్యంతో కట్టారు. అన్నిటికీ దాంట్లో ఉన్న సమస్య ఒకే రకమైన సమస్య. మీకు గుండెకాయ లాంటి అక్కడ నుంచి మేడిగడ్డ దగ్గర నువ్వు ఎత్తితే ఏడబోయాలి, అన్నారంలో కదా పోయాల్సింది. ఆడెత్తితే ఏడబోయాలి, సుందిలాలు పోయాలి, ఆడెత్తితే ఏడబోయాలి. 3 ఒకే రకమైన సాంకేతిక నైపుణ్యంతో కట్టారు. వాటికి నాణ్యత లేదనే కదా ఇప్పించారు. వైఫల్యం చెందిన సాంకేతిక నైపుణ్యము డిజైన్లో లోపం ఉంది, నిర్మాణంలో లోపం ఉంది, నిర్వహణలో లోపం ఉంది. 3 రకాల లోపాలు ఉన్న దాంట్లో హరీష్ రావు లేకపోతే
తారక రామారావు కోరుకున్నాడని ఎత్తేదన్న పోసిందనుకో, అది కూలిందనుకో, కింద చాలా గ్రామాలే తుడిచిపెట్టుకపోతాయి. बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने बारिश से मुतासरा सिरसिल्ला का तफसीली दौरा किया है। केटीआर ने उपरमानी का भी मुआयना किया और मुकामी अवाम से भी मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि अब शहर जल रहा है और नीरू चक्रवर्ती रेवंत रेड्डी बांसुरी बजा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कामारेड्डी बारिश और सैलाब से नाकाबिले रसाई हो गया है, जबकि महकमे मौसमियात ने मजीद 4 दिन बारिश की पेश क़यासी की है। वज़ीर आला का ओलंपिक्स और मूसा नदी की खूबसूरती के बारे में इजलास तलब करना मज़हक का क़ैज़ है। साबिक़ वज़ीर और बीआरएस पार्टी के लीडर हरीश राव ने जुमेरात को सैलाब से मुतासरा मेदक के इलाकों का दौरा किया। हरीश राव के हमराह मुकामी बीआरएस पार्टी के कायदीन भी मौजूद थे। उन्होंने अवाम से मुलाकात करते हुए कहा कि मसाइल की समाअत की। हरीश राव ने हुकूमत पर मुबैना लापरवाही का भी इल्ज़ाम लगाया। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि मेदक और कामारेड्डी के अवाम सैलाब से परेशान हैं। वज़ीर आला मूसा नदी की खूबसूरती और खेलों के मुकाबले के लिए जायज़ा इजलास ले रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि एक वज़ीर ये कहते हैं कि हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल सिर्फ हंगामी सूरत हाल में इस्तेमाल किया जा सकता है। कई लोग पानी में फंसे हुए हैं, लेकिन उनको निकालने के लिए इंतज़ामिया लापरवाही का मुजाहरा कर रहा है। हरीश राव ने मुतालबा किया कि जो 2 लोग मेदक में हलाक हुए हैं उनके अफराद ख़ानदान को 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और जिनकी फसलों को नुकसान हुआ है उन्हें फी एकड़ 25,000 रुपए दिए जाएं। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వరద నివారణ చర్యలు తీసుకోవడంలో పూర్తిగా విఫలమైపోయింది. ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ ఫెయిల్యూర్ అంతా కూడా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిది, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని. ఎంత బాధతో ఉన్నామంటే ఈరోజు ఇవాళ హవేలీ గన్పూర్ మండలంలో మరి 2 యువకులు చనిపోవడం జరిగింది. వాళ్ళ పిల్లలు, ముఖ్యంగా 2 పిల్లలు గురుకుల పాఠశాలలో చదువుతున్నారు. వర్షాల వల్ల గురుకుల పాఠశాల లీక్ అవుతా ఉంది, మీ పిల్లల్ని తీసుకుపోండి అని ప్రిన్సిపల్ ఫోన్ చేస్తే పిల్లల్ని మెదక్కు పోయి తీసుకొచ్చుకుందామని బయలుదేరి మరి ఆటోలో నడుపుతున్నటువంటి యాదగౌడు, ఆటోలో కూర్చున్న సత్యనారాయణ, 2 కూడా ఈ వరదలో ఆటో కొట్టుకుపోయి చనిపోవడం జరిగింది. ఆ 2 దాదాపు కొన్ని గంటల పాటు కరెంటు పోల్ పట్టుకొని ప్రభుత్వం నుంచి ఏదైనా సహాయం అందుతుందా, హెలికాప్టర్ వస్తుందా, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు వస్తాయని 4-5 గంటలు ఎదురు చూశారు. కరెంటు పోల్ మీద నుంచి ఫోన్లు కూడా చేశారు. కానీ కలెక్టర్ గారు కానీ జిల్లా యంత్రాంగం ఎవరు స్పందించలేదు. మధ్యాహ్నం 2 తర్వాత కరెంటు పోల్ కూడా వరద ఉధృతికి పడిపోయి ఆ వరదలో కొట్టుకొని ఆ 2 కూడా చనిపోవడం జరిగింది. सैलाब की सूरत हाल का जायजा लेने के दौरान मरकजी वजीर बी संजय और केटीआर का आमना सामना हुआ। दोनों कायदीन ने मुलाकात की। निर्मल इलाके के मुतासरीन से मुलाकात करके वापस होने वाले मरकजी वजीर बी संजय के कॉन्वे के सामने बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर आ गए, जिस पर बी संजय ने कार से उतरकर केटीआर से मुलाकात की। इसके बाद केटीआर निर्मल के मुतासरीन से मुलाकात के लिए रवाना हो गए। शहर हैदराबाद की कदीम ज़ख़ीरे आब उस्मान सागर के 4 दरवाजे 3 फुट तक उठा दिए गए हैं। आज सुबह मौसूला इत्तलात के मुताबिक उस्मान सागर की मुकम्मल सतह आब 1790 फुट है। मौजूदा सतह आब 1799.95 फुट बताई गई है। इनफ्लो 1700 क्यूजिक और आउटफ्लो 1352 क्यूजिक बताया गया है। हिमायत सागर का एक दरवाजा 1 फुट तक उठाया गया है। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याण स्कीम के चेक्स की तकसीम जारी है। जुमेरात को दारुस्सलाम में रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने 400 चेक्स मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में तकसीम किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 4,46,420 रुपए बताई गई है। इस्तेफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली से इज़हार तशक्कुर किया है। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने सेक्रेटरी मेट्रोपॉलिटन एरिया एंड अर्बन डेवलपमेंट डॉक्टर एलम भारती IAS से सेक्रेटेरिएट में मुलाकात करके मुख्तलिफ तरक्याती कामों के ताल्लुक से बात की।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि हैदराबाद हल्का पार्लिमान में GHMC की जानिब से जो तरक्याती काम जारी हैं वो सुस्त रफ्तारी का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि इन कामों में तेजी पैदा की जाए ताकि बारिश की वजह से आवाम को पहले ही से मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस पर तरक्याती कामों को अधूरा छोड़ा जाए तो इससे आवाम को मजीद मुश्किलात पेश आएंगी। उन्होंने पुराने शहर के इलाके हिम्मतपुरा, इंजन बावली और वट्टेपल्ली तक जारी मास्टर प्लान के कामों का हवाला दिया और कहा कि जायदादों के मालिकों को जल्द मुआवजे की रकम अदा करके सड़क की कुशादगी के कामों में तेजी पैदा की जाए। उन्होंने अलावेजी हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के तरक्याती कामों के बारे में भी मज़कूरा ओहदेदारों को तवज्जो दिलाई है। इस मौके पर मिर्जा रहमत बेग ने डॉक्टर इलम भारती को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का एक मकतूब भी हवाले किया। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने DCP साउथ वेस्ट जोन से मुलाकात करके ट्विन स्टेट्स बैंड एसोसिएशन के मसाइल की यकसुई कर दी। तफसीलात के मुताबिक पुलिस की जानिब से गणेश त्यौहार के दौरान पैड बैंड व्हीकल्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया था। इस सिलसिले में मिर्जा रहमत बेग ने पैड बैंड व्हीकल्स का DCP को मुशाहिदा करवाया, जिस पर DCP ने उन्हें इजाज़त दी कि वो अपना कारोबार जारी रख सकते हैं। DCP ने तंजीम को पाबंद किया कि वो अपने हुदूद में रहकर कारोबार करें, जिसके लिए उन्हें इजाज़त दी गई है और जो भी मुकर्रर की गई शराइत की खिलाफ वर्जी करेंगे तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि इस सिलसिले में तंजीम के सैकड़ों अफराद ने सदर मजलिस से दारुस्सलाम में नुमाइंदगी की थी। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने जुमेरात को खैरताबाद बड़े गणेश के दर्शन किए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने कहा कि गणेश मूर्ति बिठाए जाने के दूसरे दिन इसके दर्शन करना रिवायत बन चुकी है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि 6 सितंबर को निकाले जाने वाले गणेश मूर्तियों के निमज्जन के लिए वसीतर इंतजामात किए जा रहे हैं। पुलिस इंतजामात के लिए तकरीबन 30,000 पुलिस मुलाजिमीन को तैनात किया जा रहा है। CCTV, ड्रोन कैमरों से जुलूस की निगरानी की जाएगी। आदिलाबाद पुलिस की गाड़ी को नामालूम गाड़ी ने टक्कर दे दी। इस हादसे में पुलिस की गाड़ी में सवार बाज़ अफराद जख्मी हो गए हैं। टक्कर मारने वाली गाड़ी की तलाश जारी है। ये हादसा पैनगंगा के पास पेश आया है। मुतल्लिका पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। चादरघाट पुलिस स्टेशन हदूद के शंकरनगर से लगी मूसा नदी में एक शख्स गर्काब हो गया। इत्तला मिलने पर रुकन असम्बली अहमद बलाला ने नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी को मुकाम वाक़या रवाना किया। DRF की टीम और चादरघाट पुलिस 40 साल गर्काब शख्स सलीम कुरैशी की तलाश कर रही है। नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी भी मुतल्लिका रेस्क्यू टीमों के साथ राब्ते में हैं। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ जिया एनक्लेव, QMax सफायर, साजिद रेजिडेंसी, QMax मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, MK टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह QMax फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, QMax फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। QMax फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर,
वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह, घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत, 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वर्क जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश से बड़े पैमाने पर तबाहकारियां, 10 अफराद हलाक। कामारेड्डी दरिया में तब्दील, सड़कें बह गईं, पानी में फंसे कई अफराद को निकाल लिया गया। ज़खायर आब से पानी का इखराज जारी। मेडिगड्डा अनाराम सुंदेला बैरेज एलमपल्ली प्रोजेक्ट के मुकाबिल नाक़िस। कालेश्वरम प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर असेंबली में मुबाहिस के बाद ही हुकूमत ठोस कदम उठाएगी। रेवंत रेड्डी का सैलाब से मुतासरा इलाकों का फिजाई सर्वे। शहर जल रहा था, नीरो चक्रवर्ती रेवंत रेड्डी बांसुरी बजा रहे हैं। केटीआर की हुकूमत पर तनकीद, अवाम की परेशानियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। हरीश राव का रद्द अमल, बीआरएस लीडर्स का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। और चादर घाट हुदूद के शंकरनगर में मूसा नदी में एक शख्स गरकाब। एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें तलाश में मसरूफ। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।